محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی ظالم عورت کا واقعہ سنائیں گے جس نے طوطے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی کون سی سزا دی۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ ان کے گھر کے پاس ایک جنگل تھا۔ وہ جنگل بہت ہی ہرا بھرا تھا۔ اس جنگل میں بہت سارے پرندے رہا کرتے تھے۔ اس جنگل کے پاس ایک نہر تھی جس کا پانی بہت ہی میٹھا تھا۔ آس پاس کے گاؤں والے اس نہر سے پانی لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک بیٹا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے۔ اس بیوی کا شوہر بہت ہی نیک اور صاف دل کا تھا۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، مگر آج تک اس نیک شوہر نے اپنی بیوی کو کبھی بھی کوئی دکھ اور تکلیف نہ دی۔ وہ ہر کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھتا۔ اس شوہر کا دل چاہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی اس کے گھر سے خالی نہ جائے، وہ فقیر ہو یا کوئی انسان ہو یا کوئی جانور ہو یا کوئی پرندہ۔ اس کی خواہش تھی کہ میرے گھر میں کبھی بھی کوئی بھوکا نہ جائے، مگر وہی اس کی ظالم بیوی بہت زیادہ کنجوس تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں سے بھی بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کو بار بار سمجھاتا تھا کہ پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا کرو، ان کو دانا ڈالا کرو، اس سے اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کی بیوی اپنے شوہر کی یہ باتیں سنتی تو وہ یہی کہتی، مجھے یہ جانور اور پرندے، یہ کیڑے مکوڑے، انتہائی نفرت ہے مجھے ان سے، کبھی بھی ان کو کھانا نہیں کھلاؤں گی اور نہ ہی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں گی۔ وہ عورت ہمیشہ یہی کہتی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں اور جانوروں کو پیدا کیوں کیا ہے، آخر کیا فائدہ ہے۔ اس کا نیک شوہر یہی کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے نیک شوہر نے کہا کہ اگر ہم پرندوں کو کھانا کھلائیں گے تو یہ انسانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اگر انسان ہی انہیں تکلیف دیں گے تو پھر یہ پرندے کہاں جائیں گے۔ یہ بے زبان جانور تو اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوق ہے، انسانوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ ان میں سے کچھ پرندے تو انسان کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ان کو پالتو پرندوں کے طور پر رکھتا ہے اور یہ گھروں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تم تو کتنی قسمت والی ہو، تمہارے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، تمہارے گھر کے پاس ایک خوبصورت سی نہر بہہ رہی ہے جس کا پانی پینے سے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تمہیں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں تو ان پرندوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ میں تو ایک لکڑہارا ہوں، سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، ان کو بیچنے کے لیے شہر چلا جاتا ہوں اور وہ لکڑیوں کو بیچ کر شام کو گھر واپس آتا ہوں۔ میرے پیچھے ان پرندوں کا خیال رکھا کرو۔ وہ ظالم عورت اس نیک شوہر کی باتیں سن کر اور بگڑ جاتی اور کہتی، مجھے اس طرح کی نصیحتیں مت کیا کرو، مجھے تمہاری نصیحتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، مجھے یہ پرندے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں طوطا اور طوطی نے اپنا گھونسلہ بنا لیا۔ وہ دونوں اپنے ہی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے گھونسلے میں انڈے بھی بھرنا شروع ہو گئے اور کچھ ہی دنوں میں ان کے بچے نکلنے والے تھے۔ وہ طوطا اور طوطی صبح اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اس کی قدرت بیان کرتے۔ اس کی بیوی اس آواز سے بہت زیادہ پریشان ہوتی اور کہتی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے یہ پرندے بالکل بھی پسند نہیں۔ اس کا نیک شوہر کہنے لگا، اللہ کی بندی، یہ تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور ہم جیسے گناہگار انسانوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اگر تم انہیں زیادہ پریشان کرو گی تو یہ تمہارے حق میں بد دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اس نیک شوہر نے کہا، اب تم یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، دعا یا بد دعا؟ وہ عورت بولی اور کہنے لگی، مجھے یہ پرندے یہاں نظر نہیں آنے چاہیے،
तुम अपने हाथों से इनको निकाल कर बाहर फेंक दो, वरना तुम्हारी गैर मौजूदगी में इनके साथ बहुत बुरा करूँगी। उसका बेटा अपनी माँ की और बाप की बातें सुन रहा था। वो औरत अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके नाज नखरे उठाती। एक ही तो उसका बेटा था, उसका शौहर घर पे नहीं होता था। वो अपने बेटे के साथ सारा दिन गुजारती, उसके साथ मीठी मीठी बातें करती और वो सिर्फ अपने बेटे से ही मोहब्बत करती थी और किसी से उसको कोई लेना देना नहीं था। वो बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती था। उसकी माँ उसकी शरारतों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपने बच्चे को हमेशा समझाती कि बेटा शरारत ना किया करो, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा शरारतें करता था। एक मर्तबा उस बच्चे ने जब देखा कि हमारे घर में तो तोता और तोती का घोंसला बना हुआ है, उसमें अंडे भी हैं, उसका दिल चाहा वो इन परिंदों को अंडों को पकड़े और इनके साथ खेले। बच्चा सिर्फ इसी इंतज़ार में था कि कब मेरा बाप इस घर से जाए और मेरी माँ किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकले। अब सुबह सुबह उसका बाप तो घर से निकल गया जंगल की तरफ और माँ घड़ा लेकर पानी लेने के लिए नहर की तरफ चल पड़ी। जब उस बच्चे ने देखा कि मेरी माँ काफ़ी दूर निकल चुकी है, वो फौरन से उस घोंसले के पास आया और उसने अंडा उठाया। जैसे ही उस बच्चे ने अंडे को हाथ लगाया, वो तोता और तोती बेचैन होने लगे, तड़पने लगे। आखिर वो माँ बाप थे। अचानक उसकी माँ को कोई काम याद आया। वो घर वापस आई। उसने देखा कि उसका बेटा घोंसले से अंडा पकड़ा हुआ और बैठा है। वो उससे बड़े ही गौर से देख रहा था। उसकी माँ तूफान की तरह उसकी तरफ भागी और अपने बच्चे के हाथ से बड़ी नफरत से उस अंडे को पकड़कर फेंक दिया। उस अंडे से बच्चा निकल रहा था, जिसको उस औरत ने ज़मीन पर फेंक दिया। ज़मीन पर फेंकने से वो बच्चा ज़ोर से ज़मीन से टकराया और उसको बहुत गहरी चोट आई कि वो परिंदे का बच्चा वहीं मर गया। वो तोता और तोती अपने बच्चे को इस तरह मरते देख कर तड़प रहे थे। न जाने वो अल्लाह ताला से क्या बातें कर रहे थे कि या अल्लाह, आखिर हमारे बच्चे का क्या कसूर है? इस जालिम औरत ने उसको क्यों मार दिया? उस औरत ने अपने बच्चे को पकड़ा और बेइंतहा मारना शुरू कर दिया और कहा, तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हो। तुम्हें पता है कि मैं इन परिंदों से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। तुम्हारे बाप को कब का कह रही हूँ कि इन परिंदों को यहाँ से निकाल दो। आज तुमने इनके अंडों को पकड़ा है, कल न जाने क्या क्या करोगे। वो औरत अपने बच्चे को मारकर दरवाज़ा बंद करके पानी लेने के लिए नहर की तरफ चली गई। जब शाम हो चुकी थी, वो घर वापस आई। उसका शौहर भी वापस आ चुका था। जब उसने बाप ने अपने बेटे को देखा कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसने पूछा क्या हुआ। उसने कहा, आज माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। मैंने तोती का अंडा पकड़ा था और मैंने सिर्फ उसको देख रहा था कि इसमें से बच्चा कैसे निकलता है। उस अंडे से बच्चा निकल ही रहा था, यहाँ तक कि माँ ने उस अंडे को मुझसे पकड़कर खींचकर ज़मीन पर मारा और वो बच्चा वहीं मर गया। ये सुनकर उसका शौहर चिल्लाना शुरू हो गया और कहने लगा, वो बच्चा मर चुका है। तुम जानती हो कि उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। अगर ये बच्चा अंडा पकड़ ही रहा था तो तुम इसको प्यार से समझाती और अंडे को उसकी जगह पर रख देती, मगर तुमने तो अंडा भी तोड़ दिया, उनके बच्चे को भी मार दिया। तुमने एक मासूम परिंदे पर जुल्म किया है। उस जालिम औरत को अपने शौहर की बातों पर ज़रा भी असर नहीं हो रहा था। वो पहले भी नज़रअंदाज करती रही, अब भी उन बातों को नज़रअंदाज कर रही थी। उसके शौहर ने वहीं हाथ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इस औरत को हदायत दे दे और हम पर कोई ऐसी मुसीबत नाजिल ना करना जिसको हम बर्दाश्त न कर सके। वो नेक शौहर दुआ कर रहा था। वो डर रहा था कि अल्लाह हम पर कोई मुसीबत ना नाजिल कर दे। कुछ दिन गुजर
गुजरने के बाद उसको काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। बीवी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उसका जिस्म गलना सलना शुरू हो गया। बच्चे के बीमार हो जाने के बाद माँ तड़प उठी और देखा और बच्चे को देख देख कर रोती रही। उसने गांव के जितने भी हकीम थे सबको दिखाया, मगर किसी भी हकीम को इस बीमारी की समझ नहीं आ रही थी। बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शौहर यहाँ मौजूद नहीं था। अब बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि हकीम बार बार यही बोल रहे थे कि इस बच्चे को शहर से बाहर जाकर इसका इलाज करवाएं, वरना इसकी मौत का इंतज़ार करो। जब हकीम की ये बात सुनी तो वो औरत रोती हुई सजदे में गिर गई और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगी। वो अल्लाह पाक से कह रही थी कि या अल्लाह, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह में जा रहा है। उस औरत को समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है और अब वो क्या करे। इसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। उसका शौहर कब आएगा उसको ये मालूम नहीं था। उस औरत ने जो गलती की थी वो अभी तक उस गलती के लिए शर्मिंदा भी नहीं थी। वो जाकर अपने बेटे के सरहाने बैठ गई और रो रही थी। उसके बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जानता हूँ इस वक्त आप बहुत तकलीफ में हैं। माँ, मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। उसकी माँ तड़प उठी, बेटा, मैं मर जाऊंगी। उसने कहा, माँ, सोचो, जब आपने तोते के बच्चे को मार दिया, सोचिए ज़रा उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, उनका दिल कितना तकलीफ़ में होगा। जब उसने अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो एकदम तड़प उठी और उसकी नज़र तोता और तोती पर पड़ी। वो बड़े ही उदास बैठे हुए थे, औरत को देख रहे थे। वो उठी और उन दोनों के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। कहने लगी कि तुम लोग मुझे सुन रहे हो और समझ रहे हो तो मेरे हक में अल्लाह के लिए दुआ कर दो। एक दिन मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज मेरा भी बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं किसी भी जानवर और परिंदे से बुरा रवैया इख्तियार नहीं करूँगी। वो औरत इतना रोई कि बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उसने देखा कि उसका बेटा, जो हिल भी नहीं सकता था, उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसके बेटे ने कहा, माँ, अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआ सुन ली। माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन दोनों तोता और तोती की दुआ अल्लाह पाक ने सुन ली। आज के बाद मैं किसी भी परिंदे से नफरत नहीं करूँगी। उसी वक़्त उसका शौहर घर में दाखिल हुआ और वो यूँ अपनी बीवी को रोता हुआ देखकर पूछने लगा, क्या हुआ है। उसने पूरा वाक़या अपने शौहर को बताया कि इन 4 दिनों में उसके ऊपर कौन सी क़यामत गुजर पड़ी। उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, तुमने ठीक कहा था कि ये परिंदे हमारे लिए दुआ भी करते हैं, बद्दुआ भी करते हैं। आज के बाद मैं इन परिंदों से कभी भी नफरत नहीं करूँगी और इनसे प्यार और मोहब्बत से रहूँगी और आज के बाद इनको दाना भी डालूँगी। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, या अली, मैं हर रोज़ काम पर जाता हूँ मगर मुझे इस तरह कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं हक़ रखता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, तुम हर दिन का आगाज़ और हर काम का आगाज़ अल्लाह की किसी मखलूक को कुछ खिला कर किया करो, उससे तुम्हारे काम में कामयाबी होगी और तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। उसने कहा, या अली, मैं बाआसानी से किसी को खाना नहीं खिला सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। उसने कहा, हाँ या अली, मैं 2 मरतबा दिन में खाना खाता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम उस खाने में से एक अनाज का दाना निकाल नहीं सकते। उसने कहा, क्यों नहीं, उस एक दाने की क्या औकात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस अनाज के एक दाने को तुम अल्लाह की किसी मखलूक
کسی پرندے، کسی جانور، کسی چیونٹی، کسی کیڑے مکوڑے کو کھلاؤ تو اس مخلوق کی دعا سے تمہاری زندگی میں سکون پیدا کر دیا جائے گا اور تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے دل میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کا بھی رحم ڈال دے۔ آمین۔